Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sachin Hatagle, and today we are solving a problem on HackerRank. The problem is height of a binary tree. Okay, so here's the problem. The height of a binary tree is the number of edges between the tree's root and its furthest leaf. For example, the following binary tree is of height 2. Now you can see a binary tree with nodes and edges. Okay, now function description. You can see the function description. Complete the get height or height function in the editor. Okay, complete the get height and height function or height function in the editor. It must return the height of a binary tree as an integer. यहाँ पे जो भी बाइनरी ट्री की हाइट होगी वो इंटीजर में रिप्रेजेंट होगी, इंटीजर में रिटर्न करेंगे. ठीक है, गेट हाइट और हाइट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स. root a reference to the root of a binary tree. Okay, now note the height of a binary tree with single node is taken as 0. Okay, get it right? Input format. The first line contains an integer n, the number of nodes in the tree. Okay, the first line contains an integer n, the number of nodes in the tree. Next line contains n space separated integer where ith term denotes node of I dot data. Okay, got it? Now second note is here. Node value are inserted into a binary search tree before a reference to the tree's root node is passed to your function. In a binary search tree, all nodes on the left branch of a node are less than the node value. All values on the right branch are greater than the node value. Okay, you get it? All nodes on the left branch of a node are less than the node value, and all values on the right branch are greater than the node value. Okay, get it? Now you can see constraints. 1 is less than and equal to node dot data of I, and node dot data of I is less than 20. Okay, now 1 is less than n and n is less than 20. Okay, output format. We can see the output format. Your function should return a single integer denoting the height of a binary tree. जो भी आउटपुट रिटर्न होगा वो सिंगल इंटीजर में रिटर्न होगा. ठीक है. ओके, नाउ सैंपल ऑफ इनपुट. You can see the sample of input here, the binary tree. Okay, it has three node. Okay, now you can see the sample output is 3. Sample output is 3. Okay, now explanation. The longest root to leaf path is shown below. The longest root to leaf path is shown below. Root to leaf path. Here's the root and here's the leaf path. Okay, get it? There are 4 nodes in the path that are connected by edges, meaning our binary tree's height is equals to 3. मतलब हमारे बाइनरी ट्री की हाइट क्या है 3. तो हम इसको अभी रिटर्न करेंगे अपने कोड के ज़रिए. ठीक है. ओके, नाउ you can see the code here. Import java.util.strict. strict means all classes. all classes को ये कर लेगा. Okay, you can see the code here. Import java.io.strict सेमीकोलन. ओके, ये हमारा यहाँ पे यूटिल पैकेज लगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट पैकेज लगा. ठीक है. क्लास नोड, नोड लेफ्ट, नोड राइट एंड इंट डेटा हमने लिया है. नोड लेफ्ट लिए, नोड राइट और इंट डेटा लिया है. नोड इंट डेटा, दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे. दिस डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा. लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल एंड राइट इज इक्वल्स टू नल. हमारी दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों नल होनी चाहिए, मतलब खाली होनी चाहिए दोनों. ठीक है. नाउ ये द क्लास का नाम हमने सॉल्यूशन रखा है. सॉल्यूशन क्लास नेम कमेंट सेक्शन में लिखा है. क्लास नोड इंट डेटा नोड लेफ्ट नोड राइट हमने यहाँ पे देख लिया ये. ठीक है. पब्लिक स्टैटिक इंट हाइट नोड रूट. ओके, राइट योर कोड हियर. सो हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे. ठीक है. तो कोड लिखते हैं. हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, इफ़ कंडीशन. if root is equals to
नल। क्या अगर हमारी रूट खाली है, ठीक है, अगर हमारी रूट खाली है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कराएंगे -1, ठीक है। हमने -1 रिटर्न करा दिया, ठीक है। एक और रिटर्न कराएंगे, रिटर्न math.max। तो यहाँ पे math.max फंक्शन किस यूज़ में आता है, यहाँ पे math.function क्या है, math.max फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट ऑफ द 0 और मोर नंबर्स गिवन एज इनपुट पैरामीटर्स। मतलब ये 0 और उससे बड़े नंबर में से उससे ज़्यादा वाले नंबर में से सबसे बड़े नंबर को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं math.max height, then parenthesis root dot left, then comma, फिर से लेंगे हम हाइट की स्पेलिंग सही है, ठीक है, सही है, हाइट, देन पैरेंथेसिस रूट डॉट राइट ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, देन हम यहाँ +1 कर देंगे, ठीक है, +1, ओके। हमारे यहाँ क्लोज हो चुका है, ये पैरेंथेसिस भी क्लोज हो चुका है। ये हमने हमारा कोड लिख दिया जो हमें लिखना था, ठीक है। और बाकी जो इनबिल्ट कोड है इसमें से ऑलरेडी लिखा हुआ इनबिल्ट कोड, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पूरा कोड लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक नोड इंसर्ट नोड रूट इंट डेटा, ठीक है। ये पूरा कोड देख लीजिए आप। इफ रूट इज इक्वल्स टू नल रिटर्न न्यू नोड डेटा, ओके। एल्स अगर नल नहीं है नोड की UR, ओके। इफ डेटा इज ग्रेटर देन इफ डेटा इज लेस देन और इक्वल टू रूट डेटा, देन की CUR इज इक्वल्स टू इंसर्ट रूट डॉट लेफ्ट डेटा, देन रूट डॉट लेफ्ट डेटा इज इक्वल्स टू CUR। ये इनबिल्ट कोड है, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा इनबिल्ट कोड है। आप अपना जो कोड मेन कोड था हमने लिख दिया है, जिससे हमें बाइनरी ट्री की हाइट पता चल जाएगी। हमने अपना पूरा कोड लिख दिया, ठीक है। इतना पार्ट, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं क्या होता है, ठीक है। रन कोड, ओके, अपलोड हो रहा है। अपलोड होने में इसको टाइम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, हो जाएगा। एक और बार करके देख लेते हैं रन कोड, ठीक है। नेट स्लो है अपना, इसकी वजह से हो नहीं रहा है ये। एक्चुअली अपना वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, फिर वाईफाई कनेक्ट करते फिर चेक करते, ठीक है। जब ये वो हो नहीं रहा। अभी देखते, रन करके देखते इसको, ठीक है। रन कोड, हाँ अब हो जाएगा। ये हमारा रन हो चुका है। सैम्पल टेस्ट केस 0, सैम्पल टेस्ट केस 1। यू कैन सी अवर आउटपुट। इनपुट हमने दे दिया, इनपुट ये दे दिया 7352147 एंड योर आउटपुट देख लीजिए हमारा 3 आ चुका है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 3 था। यहाँ पे हमें 3 ही लाना था, ठीक है। ये हमारे ट्री की हाइट जो है 3 है, तो हमें 3 हाइट फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हम अपना जो कोड है वो पूरा सही है, ठीक है, ओके। अब कोड को सबमिट कर देते हैं। कोड सबमिट हो गया है, स्टार्टेड हो रहा है, टेस्ट केस चेक कर रहा है वो, ठीक है। कोड तो सबमिट कर दिया है अपन ने, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे। नेट स्लो है अपना, ठीक है, मेरा नेट स्लो है, दैट्स वाई।
इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ओके, हमारा कोड सबमिट हो चुका है. ठीक है. Now, so thank you so much for watching this and stay updated.